بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ویانا میٹنگ 29 نومبر کو ہوگی، ایران نے کہا غیر قانونی پابندیاں ہٹانے کے لیے بات چیت کریں گے۔ تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضے کی سالگرہ، رئیسی نے کہا بات چیت کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، واشنگٹن کی دشمنی 70 سال پرانی ہے۔ کابل میں سویلینز پر حملہ غلطی کا نتیجہ تھا، کوئی قانون نہیں توڑا گیا، پینٹاگون کی رپورٹ۔ شیخ جراح کے خاندانوں کی تائید میں مظاہرے، فلسطینی احتجاجیوں اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں۔ تمام مزاحمتی گروپس شیخ جراح خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کا بیان۔ یورپ میں کووڈ تیزی سے پھیل رہا ہے، فروری تک 5 لاکھ جانیں جائیں گی، WHO کی وارننگ۔ مودی نے فوجیوں کے ساتھ منائی دیوالی، سرجیکل سٹرائیک کو یاد کیا۔ BJP ریاستوں میں فیول اور سستا ہوگا، ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کے بعد ویٹ گھٹا دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران نے اس کے خلاف پابندیاں ہٹانے کے لیے عالمی طاقتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات چیت اسی مہینے ہوگی۔ 2015 میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، جسے 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف سخت پابندیاں لگائی تھیں۔ ایران نے بھی آہستہ آہستہ نیوکلیئر ڈیل کی شرطیں توڑنی شروع کیں۔ ایرانی عہدیدار علی باقری کانی نے اعلان کیا کہ ایران کی حکومت نے 29 نومبر کو ویانا بات چیت میں حصہ لینے سے اتفاق کیا ہے۔ یہ بات چیت جون سے رکی ہوئی ہے، جب ایران میں صدارتی الیکشنز ہوئے تھے۔ ان الیکشنز میں کٹر خیالات رکھنے والے ابراہیم رئیسی صدر بنے۔ باقری نے ٹویٹ کیا کہ ایران نے غیر قانونی اور انسانیت دشمن پابندیوں کو ہٹانے کے لیے بات چیت سے اتفاق کیا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران بات چیت کا راستہ نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے عالمی گھمنڈ کے خلاف لڑائی کے قومی دن کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام کے ساتھ امریکہ کی دشمنی 40 سال پرانی نہیں ہے بلکہ 70 سال پرانی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے 30 سال میں امریکہ بغاوت کے ذریعے اور ڈکٹیٹرز کی مدد سے ایرانی عوام کے مفادات اور ان کے حقوق کو لوٹنے میں کامیاب ہوا تھا، لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد پچھلے 43 برسوں میں ایرانی قوم نے امریکی دشمنیوں کے خلاف، یعنی امریکہ کی دشمنی کے خلاف لڑائی جیتی ہے۔
अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि अगर ईरान के नुमाइंदे संजीदा हैं तो जल्द ही ये समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमरीका को उम्मीद है कि बातचीत वहीं से शुरू होगी जहां जून में ख़त्म हुई थी। इब्राहिम रईसी से अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि वो सख्त नुक्ता नज़र अख्तियार करेंगे। मगरबी मुल्क कई महीनों से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान बातचीत में दोबारा शामिल होगा। ईरानी चाहते हैं कि अमरीका अलग अलग शोबों में लगाई गई पाबंदियां बर्खास्त करे। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में अमरीका के इत्तेहादी खासतौर पर सऊदी अरब और इसराइल न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से सख्त रुख इख्तियार कर रहे हैं। सऊदी अरब चाहता है कि न्यूक्लियर डील की बातचीत में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा उसके मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते में उसकी सरगर्मियों का भी मसला उठाया जाए। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ ने कहा है कि अमेरिका मिडल ईस्ट में ईरान से शिकस्त खा रहा है लेकिन सबक नहीं सीख रहा है। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने ईरानी इनकलाब के बाद तेहरान में अमरीकी सफारत खाने पर स्टूडेंट्स के कब्जे की सालगिरह के मौके पर एक खिताब करते हुए ये बात कही। सलामी ने ओमान के समंदर में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की नेवी के एक कामयाब ऑपरेशन की तारीफ की जिसमें ईरानी तेल चुराने की अमरीकी कोशिश को नाकाम बनाया गया। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस वाक़े का एक वीडियो फुटेज भी जारी किया है। ये वाक़या 25 अक्टूबर को पेश आया लेकिन उसकी खबर एक दिन पहले यानी चारशंबे को दुनिया के सामने आई। अमेरिका ने एक ईरानी टैंकर को जब्त किया था जिसे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की समंदरी फौज ने छुड़ाया और हिफाजत के साथ ईरानी हुदूद में उसे लाया। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि अमरीकियों को ईरानियों से हारने की आदत हो गई है। ईरानी इनकलाब के बाद स्टूडेंट्स ने अमरीकी सफारत खाने पर कब्जा कर लिया था और उसे जासूसी का अड्डा करार दिया था। यह बहरान 444 दिन चला था। इसके दौरान स्टाफ को होस्टेज या बंधक बनाकर रखा गया था। इस वाक़े का असर 1980 के अमरीकी इलेक्शंस पर भी पड़ा था। पेंटागन की एक तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि अगस्त के आखिर में काबुल में अमेरिका के एक ड्रोन हमले के दौरान कोई कानून नहीं तोड़ा गया। इस हमले में 10 सिविलियंस हलाक हुए थे जिनमें 7 बच्चे थे। लेफ्टिनेंट जनरल समी समीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये एक गलती थी, ये कोई मुजरिमाना हरकत नहीं थी। सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका और बरतानिया ने सूडान में जमहूरी हुकूमत या सिविलियन हुकूमत बहाल करने का मुतालबा किया है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि हमारा मुतालबा है कि सिविलियन क़यादत वाली उबूरी हुकूमत को फौरी बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि सूडान में खून खराबे की कोई गुंजाइश नहीं है। हाल ही में सूडान में फौजी बगावत हुई थी जिसके बाद एमरजेंसी लगा दी गई थी। फौजी हुक्मरानों ने पार्लियामेंट सस्पेंड कर दी और सियासी लीडर्स को गिरफ्तार किया। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि हुकूमत बहाल करने के लिए बातचीत हो रही है और कोई समझौता हो सकता है। अल्जीरिया ने मोरक्को पर एक मुतनाज़ इलाके में हवाई हमले करने का इल्ज़ाम लगाया है। सदारती दफ्तर ने बताया कि 1 नवंबर को अल्जीरिया के 3 शहरियों को एक बुज़दिलाना हमले में कत्ल किया गया। इन लोगों को उस वक्त बम के जरिए निशाना बनाया गया जब वो मौरितानिया के दारुल हुकूमत के करीब सफ़र कर रहे थे। मोरक्को की हुकूमत ने फौरी कोई तबसरा नहीं किया। दूसरी तरफ मौरितानिया ने कहा कि उसकी ज़मीन पर कोई बमबारी नहीं हुई। कई दहों से मोरक्को और अल्जीरिया के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान 1994 से सरहद बंद है। मगरबी सहारा के 80% इलाके पर मोरक्को का कंट्रोल है जिसे वो अपना इलाका बताता है। दूसरी तरफ अल्जीरिया ने इस इलाके में आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाली एक तंजीम की मदद की है। इथियोपिया में अमरीकी सफारत खाने ने गैर हंगामी स्टाफ और उनके घर वालों को इथियोपिया छोड़ने की इजाज़त दी है। इथियोपिया के तिग्रे इलाके में लड़ाई हो रही है। अमरीका ने कहा है कि उसे लड़ाई में तेज़ी पर तशवीश है। सफारत खाने ने एक बयान में कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट ने गैर इमरजेंसी मुलाजमीन और उनके घर वालों को अगर वो चाहें तो इथियोपिया छोड़ने की इजाज़त दी है। इथियोपिया में एमरजेंसी लगी हुई है। इस दौरान तिग्रे की लड़ाई रोकने के लिए आलमी सतह पर अपीलें की जा रही हैं। सऊदी मीडिया में कहा गया कि अरब इत्तेहाद ने मारीब में पिछले 24 घंटों के दौरान लड़ाई में 145 हुसियों को हलाक किया है। सऊदी इत्तेहाद ने इस मुद्दत के दौरान 32 हवाई हमले किए और हुसियों की 18 फौजी गाड़ियों को तबाह किया। मारीब पर कब्जे के लिए ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है। हुसियों ने हालिया अरसे में मारीब में बाज़ अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं।
हमास के सियासी लीडर इस्माइल हानिया ने कहा है कि तमाम मुजाहिमती ग्रुप्स अल-कुद्स के इलाके शेख जराह के खानदानों के साथ खड़े हैं। शेख जराह से फ़लस्तीनियों को निकालने के मसले पर कुछ महीने पहले ज़बरदस्त तनाव हुआ था और 11 दिन की जंग लड़ी गई थी। इस्माइल हानिया के हवाले से फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि शेख जराह में रहने वाले हमारे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम मुजाहिमती ग्रुप्स और पूरी फ़लस्तीनी कौम इन शहरियों के साथ हैं जो अल-कुद्स, मस्जिद अक्सा और मुक़द्दस मक़ामात की हिफाजत कर रहे हैं। हमास लीडर ने शेख जराह के खानदानों की तारीफ की जिन्होंने इस्राएली हुकूमत के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है। इस्माइल हानिया ने कहा कि शेख जराह के फ़लस्तीनी खानदानों से नाइंसाफ़ी कबूल करने के लिए मुतालबे किए जा रहे हैं और उन पर दबाव डाला जा रहा है। शेख जराह के फ़लस्तीनी ख़ानदानों से यकजहती का इजहार करते हुए एहतजाज किया गया, जिसके दौरान झड़पें हुई। मकामी लोगों ने बताया कि इस्राएली फ़ौज ने शेख जराह के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी है और एहतजाजियों का कैंप उखाड़ दिया है। कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। ये यहूदी आबादकार सख्त सिक्योरिटी में मगरबी गेट से दाखिल हुए और यहूदी तरीके से इबादत की। इस तरह के वाक़यात आए दिन पेश आ रहे हैं। हाल ही में एक इस्राएली अदालत ने कहा था कि यहूदी आबादकारों को मस्जिद अक्सा के सहन में इबादत करने का हक हासिल है। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को स्पेन में बैलों की दौड़ के दौरान एक 55 साला शख्स बैल की जद में आकर हलाक हो गया। स्पेन में ये खेल बहुत मकबूल है। इस वाक़े में इस शख्स के सर पर गहरी चोट लगी और रान के हिस्से में उसकी रग कट गई। ओहदेदारों ने इस वाक़े के बाद मकामी सतह पर बैलों की दौड़ बर्खास्त कर दी है। मुल्क में ये बहस तेज़ हो गई है कि क्या बैलों की दौड़ को ख़त्म कर देना चाहिए। इस दौड़ के दौरान लोगों का ज़ख्मी होना एक आम बात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रिवायत के मुताबिक फ़ौजियों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर उन्होंने नौशहरा सेक्टर में सिपाहियों से मुलाकात की। उन्होंने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को याद किया और उसमें आर्मी ब्रिगेड के रोल की तारीफ की। जवानों से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी वो दिन हमेशा के लिए यादगार हो गया। वो फ़ोन के करीब बैठे थे और देख रहे थे कि एक एक सिपाही कहाँ है। इंडिया ने 29 सितंबर 2016 को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उड़ी सेक्टर में एक फ़ौजी अड्डे पर हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। मोदी ने कहा कि हमारे बहादुर सिपाहियों की वजह से मुल्क के अवाम सुकून की सांस लेते हैं और नींद लेते हैं और त्यौहार मनाते हैं। जवानों से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मैं परिवार के साथ दिवाली मनाना चाहता था, इसीलिए आपके पास आ गया। बीजेपी रियासतों ने डीजल और पेट्रोल पर वैट में कमी की है, जिसके बाद पेट्रोल उन रियासतों में और सस्ता हो जाएगा। एक दिन पहले मरकजी हुकूमत ने फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कमी का ऐलान किया था। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये फ़ी लीटर एक्साइज ड्यूटी में कमी करते हुए रियासतों से ख्वाहिश की थी कि वो वैट कम करें, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और बिहार की हुकूमतों ने फ्यूल पर वैट में कमी का ऐलान किया। यूपी हुकूमत ने कहा कि वो फ़ी लीटर 12 रुपये कम करेगी। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत जल्द ही पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करेगी। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने 7 रुपये की कमी का ऐलान किया। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी 7 रुपये की कमी का ऐलान किया। बिहार में भी वैट में पेट्रोल पर 6.5 रुपये और डीजल पर 11 रुपये 90 पैसे कमी का ऐलान किया गया। उत्तराखंड हुकूमत ने पेट्रोल पर 2 रुपये की कमी का ऐलान किया। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 12,885 नए कोविड केस पाए गए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 461 जानें गई हैं। इनमें से 362 मौतें केरला में हुई। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में दिए गए वैक्सीन डोजेस की तादाद 107 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा हो गई है। एक दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने घर घर वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का ऐलान किया था। चाइना के दारुल-हुकूमत बीजिंग में कोविड-19 केसों में इजाफे को देखते हुए पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। खासतौर पर दारुल-हुकूमत में आने वाले लोगों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। WHO ने कहा है कि यूरोप में कोविड फिर से फैल रहा है, जो फिक्र की बात है। WHO ने कहा कि यूरोप में अगले साल के शुरू तक 5 लाख जानें जा सकती हैं। WHO के यूरोप डायरेक्टर हांस क्लग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम एक बार फिर मरकज़ बनने जा रहे हैं। 23 मुल्कों में वायरस फैलने की रफ्तार बहुत तशवीशनाक है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो फरवरी तक 500,000 डेथ्स हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि तमाम उम्र के लोगों में कोविड केसों में इजाफा
देखा जा रहा है। उन्होंने केसों में इजाफे के लिए नाकाफी वैक्सीनेशन और अवाम में कोताही को वजह बताया। उन्होंने बताया कि जिन मुल्कों में वैक्सीनेशन की शरह कम है वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती होने के केसेस बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल अब भी वायरस के खिलाफ लड़ाई के अहम हथियार हैं। रशिया में पिछले 7 दिनों में कोविड-19 से 8,162 मौतें हुई। यूक्रेन में इसी मुद्दत के दौरान 3,829 और रोमेनिया में 3,100 मौतें हुई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वियना मीटिंग 29 नवंबर को होगी। ईरान ने कहा गैर कानूनी पाबंदियां हटाने के लिए बातचीत करेंगे। तेहरान में अमरीकी सफारत खाने पर कब्जे की सालगिरह। रईसी ने कहा बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। वाशिंगटन की दुश्मनी 70 साल पुरानी है। काबुल में सिविलियंस पर हमला गलती का नतीजा था, कोई कानून नहीं तोड़ा गया, पेंटागन की रिपोर्ट। शेख जराह के खानदानों की ताईद में मुजाहरे, फलस्तीनी एहतजाजियों और इस्राएली फौज में झड़पें। तमाम मुजाहिमती ग्रुप शेख जराह खानदानों के साथ खड़े हैं। हमास लीडर इस्माइल हानिया का बयान। यूरोप में कोविड तेजी से फैल रहा है, फरवरी तक 5 लाख जानें जाएंगी, WHO की वार्निंग। मोदी ने फौजियों के साथ मनाई दिवाली, सर्जिकल स्ट्राइक को याद किया। बीजेपी रियासतों में फ्यूल और सस्ता होगा, एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद वैट घटा दिया गया। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।